हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीस्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की शिफ्ट में यूजीसी नेट जून 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड PYQs। एवरस्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरस्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। So the question is, what is modeling approach of research design? So जब भी हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, जो कि हमारा ब्लूप्रिंट है हमारी रिसर्च का, हमें यहाँ पर बताना है कि उसकी जो मॉडलिंग अप्रोच है वो बेसिकली क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है मॉडलिंग अप्रोच में। सबसे पहले है द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल मॉडल, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजंस आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉडल। सो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको हम मैथमेटिकल मॉडल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजंस that we are drawing and we are drawing from that particular model. Then we have there is no research problem in this approach. Solutions and conclusions are derived from the objectives. Third is the research problem is represented in the subjective manner. Solutions and conclusions are derived from the research questions. And then we have the research problem is represented in the objective manner. Solutions and conclusions are derived from the research methodology. So when we are preparing a research design, उसकी जो हमारी modeling approach है, मॉडलिंग अप्रोच में जो हमारा कोर आइडिया है, वी एक्सप्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल मॉडल्स। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशंस यूज करेंगे, सिस्टम्स यूज करेंगे, एल्गोरिदम्स यूज करेंगे, राइट। तो इस तरह की जो हमारी अप्रोच होती है फॉर डिजाइनिंग द रिसर्च डिजाइन, उसको हम जो है वो मॉडलिंग अप्रोच बोलते हैं। जनरली हम देखते हैं ऑपरेशंस, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन फील्ड्स में काफी कॉमन ये अप्रोच होती है। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। Next is what is questionnaires. So questionnaires are frequently utilized in survey-based researches. तो हमें बताना है questionnaire होता है कि this is the most easiest question. So we have options here. It is data analysis instrument. Second is it is data collection instrument. Third is data comparing instrument, and fourth is it is analysis and result finding instrument. So questionnaire is basically, we all know, simple answer here is option number 2, which is the questionnaire is a data collection instrument. With the help of questionnaire, basically we collect the data in the surveys researches in the social sciences, business management, and economics. Next is, which of the following statements most appropriately explains research ethics? So here we have to find out कि research ethics को कौन से statements जो हैं वो appropriately explain करती हैं. We have four options here. The first is it states how to write a research report flawlessly. Second is it gives the methodology of researching within social norms. C is it provides a common set of do's and don'ts of conducting ethical research. And fourth is it protects the rights and welfare of research participants. We have four options here, right? And if you read all these four options, it seems कि जो भी यहाँ पर four options हैं, they are all relevant related to the research ethics. They are all explaining the research ethics, it seems, from the statements. But the question is saying that we have to select the most appropriate options. So we have to choose two most appropriate options here, which are explaining the research ethics. So if you see, option number C, which states that it provides a common set of do's and don'ts of conducting ethical research, correctly explain the research ethics. रिसर्च एथिक्स में हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि इथिकल रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है. एंड फोर्थ इज कि जो भी हमारे रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनके राइट्स एंड वेलफेयर को प्रोटेक्ट करते हैं रिसर्च एथिक्स. सो सी एंड डी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. जो स्टेटमेंट ए एंड बी है, दे आर नॉट एक्जैक्टली रिलेटेड टू द रिसर्च एथिक्स. दैट इज वाई अवर राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर सी एंड डी only. Next is what is historical research method. So we have to explain here कि historical research method क्या होता है. We have four options. The first is it collects facts by understanding the present situation. Sources of information include interviews of experts, surveys, etc. Second is it collects facts by predicting the future. Sources of information include questionnaire, telephonic interview, etc. Third is it collects facts by going
in the past in different periods. Sources of information include written records, newspapers, diaries, letters, travelers' accounts, documents, etc. And fourth is it collects facts by using common sense and also tries to solve practical problems. Sources of information include surveys and interviews. So if you see हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारा ना प्रेजेंट पे फोकस है, ना फ्यूचर पे, ना ही सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. इन हिस्टोरिकल रिसर्च हमारा फोकस होता है कलेक्टिंग द डेटा बाय गोइंग इनटू द पास्ट इन डिफरेंट पीरियड्स. पास्ट में जाने से मतलब है जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, किसी की डायरीज हैं, या लेटर्स हैं, या ट्रैवलर्स अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एक्सकवेशंस हम करते हैं, उनसे जो भी हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उन एविडेंसेस को एनालाइज करना एंड चेक करना कि पास्ट में चीजें कैसे जो हैं वो हो रही थी बेसिकली. सो दैट इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. सो इन दिस केस अवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट भी है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन. हमें यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है, एंड इन द लिस्ट टू वी हैव मीन ऑफ बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली वी हैव नंबर ऑफ ट्रायल्स, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मीन ऑफ बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. सो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई n by p. Our answer would be there. So if we multiply n by p here, 16 into 0.8, it would be 12.8, right? If you multiply 21 by 0.6, so it would basically result in 21 into 0.6, it would result into 12.6. So if you see b के साथ हम मैच करेंगे 4 को, then we have 13 and 0.7. So if you multiply 13 into 0.7, it will result into 9.1, and then if you multiply 23 into 0.4, it would result in 9.2. सो अवर राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, जहां पर हमने मैच किया है ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 2. Next is the following are the steps related with construction and standardization of research tools. Select their correct order from earlier to later. So हमें यहाँ पे करना क्या है, जो हमारा रिसर्च टूल है, वी आर डूइंग रिसर्च, हम कुछ रिसर्च टूल कुछ है वो यूज़ करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा, फॉर मेजरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, जिनके रिगार्डिंग हम जो है वो एक पर्टिकुलर रिसर्च जो है वो उसको कैरी आउट कर रहे हैं. सो उसको उसकी जो सीक्वेंस है उसको हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और अर्लियर टू लेटर लगाना है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा दैट वुड बी कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स. सबसे पहले हम जो आइटम्स होंगी हमारी उनको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा. जो आइटम्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, पूल ऑफ आइटम्स हमारी होंगी जहां से हमें जो आइटम्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं. अगर हमारी सर्वे बेस्ड रिसर्च है, राइट, तो हमारे क्वेश्चन होंगे या स्टेटमेंट्स होंगी. अगर एक्सपेरिमेंटल है तो हमारे पास कुछ टास्क, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर प्राइमरी ड्राफ्ट ऑफ द टूल. तो हम कुछ जो भी हमारे पास पूल होगा कंस्ट्रक्टेड आइटम्स का, वहां से हम कुछ सेट ऑफ जो आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे फॉर द प्राइमरी ड्राफ्ट ऑफ द टूल. नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा आइटम एनालिसिस. फिर जो भी हमारे पास आइटम्स होंगे जिनको हमने प्राइमरी ड्राफ्ट के लिए सेट किया होगा, उन आइटम्स को बेसिकली हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे. देन वी हैव सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टूल. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा प्राइमरी ड्राफ्ट बनेगा हमारे टूल का, उसके लिए हम आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट. एंड लास्ट में हम जो हमारी जो नॉर्म्स होंगी उनको हम एस्टेब्लिश करेंगे. नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करने का बेसिकली मतलब है कि हमारी स्कोरिंग नॉर्म्स क्या होंगी, किस तरह से हम स्कोरिंग करेंगे, हमारा जो टूल है उसकी रिलायबिलिटी को कैसे हम चेक करेंगे, उसकी वैलिडिटी को कैसे चेक करेंगे. तो ये सारे काम जो है हमारा वो होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्म्स में. तो इसमें हमारी जो राइट सीक्वेंस होगी दैट वुड बी ए ई सी बी एंड डी. दैट इज इन अवर ऑप्शन नंबर 1. राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च. सो एक्शन रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं वो हमें बेसिकली यहाँ पर बताना है. सो द फर्स्ट ऑप्शन हियर इज इट डज नॉट एम टू डेवलप थ्योरी. सेकंड इज इट इज नॉट कंडक्टेड टू जनरलाइज द फाइंडिंग्स. देन वी हैव सैम्पल selected randomly. It is conducted to find the solutions of the local level problem and control on variable is required in it. So theory development के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज है वो नहीं करते हैं. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अगर हमें फाइंडिंग्स को ओवरऑल जनरलाइज करना है, इनकी एक सैंपल पे हमने स्टडी करी, अब हमें उसे एंटायर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना है, उसके लिए भी एक्शन रिसर्च यूज जो है वो नहीं होती है. तो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. रैंडम सैम्पलिंग हम एक्शन रिसर्च में नहीं करते हैं, जनरली हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग से जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा यहाँ पर जो फोकस है, द फोकस इज टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस ऑफ ए पर्टिकुलर लोकल लेवल प्रॉब्लम. सो फोर्थ स्टेटमेंट हियर वुड बी करेक्ट कि जो एक लोकल लेवल प्रॉब्लम है, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो ऑप्शन नंबर डी है वुड बी करेक्ट. एंड कंट्रोल ऑन वेरिएबल्स
की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्शन रिसर्च में, और यहाँ पर दिया गया है द कंट्रोल ऑन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड इन इट, सो देयर इज नो कंट्रोल ऑन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड इन द एक्शन रिसर्च। ये जनरली हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। Next, we have arrange in sequence the process of evaluating analogical reasoning. So, analogical reasoning की process को हमें sequence में लगाना है। Analogical reasoning means जब दो similar चीज़ों को हम study करते हैं और उनमें एक analogy establish करने की कोशिश करते हैं, that is called the analogical reasoning. So, in analogical reasoning, our first step would be to identify the source and target domain. जो भी हमारा source है उसको हम identify करेंगे और जो हमारा domain है उसको basically हम target करेंगे। तो first step हमारा E आ जाएगा। तो हम सबसे पहले करेंगे कि दो जिन चीज़ों को हमें कंपेयर करना है उनको डिटरमाइन करना है, जिसको हम एक नॉन सिचुएशन हमारी होती है जिसको हम सोर्स बोलते हैं, और न्यू सिचुएशन जिसको हम टारगेट बोलते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड स्टेप आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हम डिटेक्ट करेंगे कॉमन फीचर्स को। सो हमारा सोर्स भी डिसाइड हो चुका है, हमारा टारगेट भी डिसाइड हो चुका है। नाउ वी विल डिसाइड कि उनमें कॉमन फीचर्स हैं क्या। कॉमन फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनकी रेलिवेंस को चेक करा जाएगा। फिर जो भी रेलिवेंस ऑफ सिमिलैरिटीज हैं उसको हम एसेस करेंगे कि जो भी हमने डिसाइड किया है कि ये कॉमन फीचर्स हैं और यहाँ पर एनालॉजिकल रीजनिंग हो सकती है, तो जो सिमिलैरिटीज हैं उनकी रेलिवेंस क्या है, उसके बेस के ऊपर जो कंक्लूजन्स हैं हम उसको ड्रॉ करेंगे। एंड एट द एंड जो हमारी स्ट्रेंथ है एनालॉजी की उसको चेक किया जाएगा, राइट, कि जो भी एनालॉजी हमने एस्टेब्लिश करेगी हाउ स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग द एनालॉजी इज कंसिडरिंग द डेप्थ एंड रेलिवेंस ऑफ द शेयर्ड फीचर्स, राइट। जो भी हमारे शेयर्ड फीचर्स हैं उनकी डेप्थ क्या है, रेलिवेंस क्या है, और स्ट्रॉन्ग हमारी एनालॉजी है या नहीं, तो इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा EDCAB, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो हमें यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। जो टेस्ट हमारे पास यहाँ पर मेंशन है वो है कैंडल्स डब्ल्यू टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, विल्सन टेस्ट, राइट, देन वी हैव टी टेस्ट, एनालिसिस एंड वेरिएंस। सो यहाँ पर अगर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे हैं कैंडल्स डब्ल्यू टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट एंड विल्सन टेस्ट, राइट। टी टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि एनोवा, ये हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ABC ओनली, राइट। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में बेसिक डिफरेंस क्या है? पैरामीट्रिक जो हमारे टेस्ट होते हैं दैट एज्यूम्स द नॉर्मेलिटी, की जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का वो नॉर्मल है, राइट। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा सेट का वो नॉर्मल नहीं है। Next question is the teacher assesses the answer books of the students and based on their scores he gives them ranks. Which scales of measurement are used by them? So here the question is कि एक टीचर है, टीचर assess कर रहा है आंसर बुक्स को स्टूडेंट्स की, राइट, और उनको स्कोर्स जो है वो दे रहा है, उनको मार्क्स वो प्रोवाइड कर रहा है और मार्क्स के बेस के ऊपर वो रैंक भी यहाँ पर लेकर के आ रहा है, रैंक भी क्रिएट कर रहा है। सो कौन सा मेजरमेंट जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है वो यहाँ पर यूज हो रहा है? सो इन ऑप्शंस वी हैव इंटरवल एंड ऑर्डिनल, देन वी हैव रेशियो एंड ऑर्डिनल, then we have nominal and ordinal, and then interval and nominal. So इस पर्टिकुलर केस में जो स्केल हम यूज कर रहे हैं दैट इज इंटरवल एंड ऑर्डिनल। अब इंटरवल एंड ऑर्डिनल क्यों है? तो देखिए जब भी एक टीचर असेस कर रहा है आंसर बुक्स को, स्कोर्स को, जो मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो इंटरवल स्केल्स पे हैं, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 60 इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 70 एंड 80। बट यहाँ पर क्या है, कोई ट्रू जीरो नहीं है जो इंडिकेट करे एब्सेंस ऑफ द ट्रेट, राइट। तो इसलिए हमारा ये इंटरवल स्केल हो जाएगा। एंड देन अगर हम इसको ऑर्डर में लगा रहे हैं, रैंक दे रहे हैं, दैट वुड बी ऑर्डिनल स्केल। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। Then we have match the following type question, जिसमें हमारे पास list 1 है and then we have list 2. In list 1 we have experimental research, ethnographic research, survey and case study, right? तो उनकी जो explanation है उसके साथ हमें यहाँ पर इसको मैच करना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है in depth study of a single unit। तो जब भी हम in depth study करते हैं एक single unit की, this is conducted in the case study, राइट। सेकेंड इज स्टडी ऑफ ओपिनियंस ऑफ पीपल टुवर्ड सोशल मीडिया, राइट। जब हम ओपिनियंस को स्टडी कर रहे हैं वी यूज सर्वे फॉर दैट। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखने को मिलता है। एंड देन वी हैव स्टडी ऑफ परसेप्शन ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप रिगार्डिंग देयर लाइफ, ये हम करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च में जब हम लाइफ स्टोरीज को स्टडी करते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दिस वाज अवर लेक्चर ऑन द PYQs ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी एक बहुत ही अच्छी लर्निंग यहाँ पर हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।